Okay, so let's start with question number 5th. A very simple question. A body A moves with a uniform acceleration small a and zero initial velocity. So I will be dividing this in two cases, body A and body B. Just a minute, let me just change pen. I will need a thicker one. Yeah. So I'm going to divide this question into two cases क्योंकि दो बॉडी के बारे में बोला है. So body A moves with a uniform acceleration small a and zero initial velocity. So for body A, we have initial velocity to be zero and acceleration a to be constant. Another body B starts from the same point, moves in the same direction with a constant velocity v. So body B, it starts from the same point, moves in the same direction with a constant velocity v. So here the velocity is always constant. Initial velocity and final velocity both are v. क्योंकि constant velocity है, so that means velocity is not changing at all. Right? Okay. The two bodies meet after time t. The value of t is बहुत simple है. When two bodies meet, जब दोनों bodies ने same distance cover किया होगा क्योंकि दोनों bodies same point से start हुए हैं. If the two bodies are starting from the same point and if they are meeting, that means they will have to travel same distance, equal distances. Easy है. So what is the distance traveled by body A is simple. Let us say SA is equal to ut plus half at square, and SA is u is 0, तो half at square आ गया सिर्फ, and the distance traveled by body B is simply vt. सिंपली vt क्यों, मैं वापस वही अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ut plus 1/2 at square, but acceleration in case of A body was a, initial velocity was 0. In case of body B, initial velocity is v and acceleration is 0 क्योंकि उन्होंने बोला है the body B is moving with constant velocity, मतलब acceleration is 0. acceleration 0 अगर है तो you get simple SB is equal to u की जगह पे v t and 0. So SB is equal to simply vt. And if the bodies are meeting, then they must have traveled same distance. So for bodies A and B to meet, A and B to meet, SA should be equal to SB. So SA is half AT square and SB is nothing but VT. एक t गया, हमको पूछा है what is the value of t, तो बस t के लिए अरेंज कर लो. So 2v by a, so t is nothing but 2v by a. Very simple case. Option number A. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. एक बॉडी A है which is moving with constant acceleration small a and zero initial velocity. एक दूसरा बॉडी है another body B which starts from the same points, moves in the same direction with a constant velocity v. The two bodies meet after a time t. The value of t is, for the two bodies to meet and if they're starting from the same position, then in that case they should travel same distances. तो हमने सिर्फ SA और SB निकाला, उसको इक्वेट कर दिया. That's it. Simple question. Next, 6th. A car moving with a speed of 50 km per hour can be stopped by brakes after at least 6 meters. तो the speed of the vehicle is 50 और ब्रेक अप्लाई करने के बाद 6 मीटर के बाद हम लोग उसको रोक पाए. If the same car is moving at a speed of 100 km per hour, the minimum distance after which it can stop, that is minimum stopping distance, is, बहुत easy है ये केस. हम यहाँ पे यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. राइट, गुड. सिर्फ प्लस की जगह पे मैं लिखूंगा -2as.
और माइनस क्यों लिखा? इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन का केस है और डी एक्सेलरेशन में ए नेगेटिव होता है। और मैंने यही पर्टिकुलर इक्वेशन क्यों यूज किया? क्योंकि एक, हम लोगों को दोनों केस में फाइनल वेलोसिटी पता है, v इज 0, क्योंकि रुकने वाला है गाड़ी तो v इज 0। दोनों केस में इनिशियल वेलोसिटी भी पता है। दोनों केस में एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट आएगा, ये भी पता है। कांस्टेंट क्यों आएगा? बॉडी कार सेम है ना, सेम कार है तो डी एक्सेलरेशन सेम होगा, राइट? क्योंकि सेम कार है तो टायर सेम है, टायर रोड में फ्रिक्शन सेम है, ब्रेक अप्लाई किया तो वो भी सेम है, क्योंकि कार सेम है। तो आई कैन यूज दिस एंड आई कैन से v is 0 u square minus 2as. Then I can say 2as is equal to u square. Then I can say s मतलब distance, stopping distance is proportional to u square since a is constant. क्योंकि a constant है तो s is proportional to u square. Okay, simple case. तो s2 by s1 will directly be u2 by u1 bracket square. तो S2 is equal to U2 by U1 bracket square into S1 and U2 is 100, U1 is 50 दिया ही है वो, और उसका स्क्वायर, और S1 आपको दिया है, S1 is 6 मीटर। तो ये आ गया 1 जा 2 जा 2 square is 4, 4 into 6 is 24 meter. The same vehicle will stop after 24 meter if the initial speed is 100 किलोमीटर पर आवर। सिंपल केस था। हमको सिर्फ ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी हैव। हमारे पास इंफॉर्मेशन है फाइनल वेलोसिटी का, हमारे पास इंफॉर्मेशन है इनिशियल वेलोसिटी का, हमारे पास इंफॉर्मेशन है एक्सेलरेशन का क्योंकि डी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है पहले केस में डिस्टेंस का। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as यूज करके हमने देखा s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। यूजिंग दैट प्रोपोर्शनलिटी s2 by s1 is u2 by u1 bracket square. Done. Right. Then next question. ये भी easy question है. Everything is easy by the way. A body A starts from rest with an acceleration a1. After 2 seconds, ये बहुत important word है यहाँ पे. After 2 seconds. If you don't read this properly, you're going to make mistakes. Another body B starts from rest with acceleration a2. So you have a body A, you have a body B. Okay, so body A starts with an acceleration a1. Body B starts from rest also with a2. मतलब initial velocity here is 0 and here is also 0, right? Okay. If they travel equal distances in the fifth second, मतलब time t1 for the first body is 5 seconds and time t2 for the second body is t1 minus 2. ये होती है गलती, right? This is the way you have to write. क्योंकि उन्होंने बोला if they travel equal distances in the fifth second किसका? पहली बॉडी का। दूसरे का तो 3 आएगा ना, दूसरे का 3 आएगा। दूसरे का 3 क्यों आएगा? क्योंकि they have started after a delay of, like body B have started after a delay of 2 seconds. Then the ratio of A is to B is, you need to understand this thing. Okay, बहुत easy है। हम यहाँ पे कॉमन फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड? दैट इज u plus a by 2 to n minus 1. ओके, सिंपल केस। तो दोनों के लिए हम लोग, अगर हमको रेशो ही चाहिए तो व्हाट यू शुड नो इज फॉर द बॉडी A, distance traveled in 5th second for body A is going to be equal to distance traveled for body B in 3rd second. 3rd second क्यों लिखा? According to the question, if they travel equal distances in 5th second. किसका 5th second? पहली बॉडी का, A बॉडी का 5th second.
सेकेंड बॉडी का थर्ड सेकेंड, क्योंकि सेकेंड बॉडी ने 2 सेकेंड के बाद चलना शुरू किया था. ओके, तो what they are trying to tell you indirectly is that distance traveled by body A in 5th second is equal to distance traveled by body B in 3rd second. ये उनको बताना है, right? By the way, दोनों केसेस में क्योंकि u0 है, right? दोनों केसेस में u0 है, तो distance traveled in nth second is proportional to, proportional नहीं भी लिखना है तो equal to लिख लो, a by 2 2n minus 1 since u is 0 for both cases. तो डायरेक्टली आ जाएगा. पहले केस का a मतलब a1 अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, 2 टाइम्स ऑफ 5 क्योंकि n की वैल्यू 5 है पहले केस में, a बॉडी केस में -1. यहाँ पे a2 by 2 आएगा और ये आएगा आपका 2 into 3 -1, राइट. तो 2 2 गया, तो ये 10 - 1 9 हुआ, तो 9 टाइम्स ऑफ a1 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ a2. a1 is to a2, a1 upon a2 is 5 by 9. खत्म हो गया क्वेश्चन, ऑप्शन आ गया ए. सिंपल, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं है. 2 बॉडीज है, सिर्फ क्वेश्चन ये समझना है कि दूसरी बॉडी ने, बॉडी बी ने 2 सेकंड के बाद चालू किया है. तो व्हेन दे से दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन द 5th सेकंड, मतलब 5th सेकंड काउंटेड फ्रॉम द मोशन ऑफ ए. जब ए ने चालू किया तब से 5 सेकंड काउंट कर रहे हैं हम लोग. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. और आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला है u plus a by 2 2n minus 1. यू डोंट हैव टू यूज ut plus 1/2 at square. अगर आप वो यूज करते हो तो यू आर गोइंग टू मेक इट रॉन्ग. सिंपल. नेक्स्ट 8. ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, interesting and little complicated as well. I mean, solution is simple. Understanding of the question is complicated. A balloon is at a height of 81 meter. हमारे पास एक बलून है जो ग्राउंड से 81 मीटर की हाइट पे है. Is ascending upwards with a velocity of 12 meter per second. The balloon is going up with a speed of 12 meter per second. A body of 2 kilogram weight is dropped from it. इस बलून से एक 2 kg के बॉडी को ड्रॉप कर दिया. If g is 10 meter per second square, the body will reach the surface in how many seconds? यहाँ पे ये जो वर्ड ड्रॉप्ड है, इट इज लिटिल ट्रिकी, क्योंकि नॉर्मली मैंने आपको बताया है कि जब आप बोलते हो ड्रॉप्ड, तो ड्रॉप्ड का मतलब होता है दैट इनिशियल वेलोसिटी इज 0. दिस इज व्हाट यू नो. व्हेन यू से ड्रॉप, दैट इज u इक्वल टू 0. बट यहाँ पे वैसा नहीं है. क्यों वैसा नहीं है? क्योंकि इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको वो एक पुलिस के जीप से गन फायर, बुलेट फायर किया था, वो मैंने आपको बताया था. तो जब भी एक मूविंग बॉडी से दूसरा बॉडी ड्रॉप या रिलीज भी किया तो इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0. इनिशियल वेलोसिटी हियर इज इन फैक्ट -12 मीटर पर सेकंड. माइनस क्यों लिया? माइनस इसके लिए लिया हम लोगों ने क्योंकि बॉडी आएगा नीचे, ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसलिए माइनस आएगा. माइनस क्यों आएगा अच्छे से समझ लो. जब मैं रिलीज करूंगा या ड्रॉप करूंगा, द बॉडी इज गोइंग टू कम डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, बट द बॉडी इज बीइंग ड्रॉप फ्रॉम अनदर बलून व्हिच इज गोइंग अप, तो इनिशियल वेलोसिटी इज माइनस. अगर बलून नीचे आ रहा होता तो +12. दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. हमको क्या फाइंड करना है? टाइम. सिंपल केस है. हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. s मतलब h, मतलब हाइट पता है हमको, s इक्वल टू h दैट इज 81. इनिशियल वेलोसिटी पता है -12, t तो फाइंड ही करना है हम लोगों को, प्लस हाफ, a मतलब g मतलब 10. ओके, यहाँ पे -10 मत कर देना, फिर आप बोलोगे माइनस y एक्सिस. देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, या तो यू राइट
इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर नेगेटिव नीचे आ रहा है तो माइनस ले लो, या तो राइट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब आप बोल रहे हो कि ग्रेविटी नीचे है तो राइट डाउन जी एस प्लस, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। प्रोजेक्टाइल में उल्टा था, याद रखना, प्रोजेक्टाइल में बॉडी वाज गोइंग अगेंस्ट द फोर्स, इसलिए माइनस लिखा था हमने। तो यहाँ पे ये +10 आएगा, डोंट मिस ओवर हियर, टी स्क्वायर। तो यू विल हैव 81 इक्वल टू -12t, एंड दिस इज +5t स्क्वायर। ओके, तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 5t स्क्वायर -12t -81 इक्वल टू 0। नाउ this is a quadratic equation for which you cannot find out factors। जब फैक्टर नहीं होते तो आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हो। अगर आपके पास ax² + bx + c ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके रूट्स मतलब x की वैल्यू जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, दैट इज गिवन बाय -b ± (b² - 4ac/2a। ये पता होगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, अगर ये पता नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमारे केस में हियर a की वैल्यू +5, b की वैल्यू -12, c की वैल्यू -81। तो x की जगह पे t है, व्हाट विल बी t? t विल बी -b ± (b² - 4ac/2a। मतलब t is equal to -b -12 plus minus, I will be writing down it at another place here। तो t is equal to minus plus minus b square is -12 का square -4ac। anyways I hope you can still see it। तो ये आएगा -4 into a is 5 and -81 is c upon 2 times of a। तो t will be equal to 12 plus minus 144, 12 square is 144, और 81 5 for the 20, 81 2 za 162। ओके 162, तो ये आएगा 1620 अपॉन 10। 1620 में 144 ऐड किया तो 1620 में 144 ऐड कर दो, 12 प्लस माइनस, फिर उसका रूट भी तो लेना पड़ेगा आप लोगों को, तो दैट इज टू बी 1764 आएगा ये, और बाई 10 आएगा। 1764 का रूट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 42, it should be 42, yes। तो 12 प्लस माइनस 42/10, तो दो वैल्यू मिलेगी, उसमें से एक ही वैल्यू हमारे काम की है, क्योंकि अगर मैं 12 प्लस 42 लिखता हूँ तो 54, अगर 12 माइनस 42 लिखता हूँ तो -30। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम लोग वो माइनस वैल्यू छोड़ देंगे। तो हम लोग लिखेंगे t इज इक्वल टू 12 प्लस 42/10। मैंने नेगेटिव वैल्यू छोड़ दिया क्योंकि माइनस टाइम नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए। तो ये आ गया 54/10, दैट इज 5.4 सेकेंड। है क्या 5.4? यस, ऑप्शन नंबर सी। तो व्हाट लॉजिक वी हैव अप्लाइड? इट इज प्रीटी सिंपल थिंग। बलून ऊपर जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 12, वहां से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया, तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी होगा -12, because the object will come down because of gravity, but the object was dropped from a balloon which was moving up, इसलिए नेगेटिव आएगा। एंड देन इट इज जस्ट सिंपल थिंग, हाइट दिया हुआ है आपको, टाइम फाइंड करना है। सिर्फ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने की वजह से you should know how to find out roots of a quadratic equation, that's it।
A particle is dropped under gravity from rest from a height h and it travels a distance of 9h by 25 in the last second. बहुत important word है. The height h is. अगर मैं मान लेता हूं कि total time for which the object travels, मतलब वो उसको ग्राउंड तक आते आते अगर n seconds लग गए मान लो, right? So let the object or the particle takes n seconds to reach the ground. Ground मतलब height h cover करने के लिए, right? Therefore, what we know is distance traveled in total n second, that is ut plus half at square. s मतलब h है ना, जितने भी हाइट से वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ रहा है, दैट इज h. u 0 है क्योंकि उन्होंने बोला है इट इज ड्रॉप्ड, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. a की वैल्यू जो है g है, g by 2. t मतलब n, क्योंकि n सेकेंड लग गए मैंने बोला है, तो मुझे मिल गया h इज इक्वल टू g by 2 n स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, राइट. और क्या बोला है कि जो लास्ट सेकेंड होगा, nth सेकेंड होगा, मतलब 1 2 3 4 ऐसे n सेकेंड लगे ना, जो लास्ट सेकेंड होगा, nth सेकेंड होगा, उसमें डिस्टेंस कितना कवर किया, 9h by 25. The particle covers or travels a distance of 9h by 25 in last second, मतलब nth second basically. Therefore, Sn is equal to u plus a by 2 times of n minus 1. ये यूज करेंगे. Sn दिया है हमको 9h by 25 बोला है, u तो 0 ही है, a मतलब g है by 2 2n minus 1, इक्वेशन नंबर 2. क्वेश्चन जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि calculations you will have to do over here. अब from 1 and 2 हम लोग सिर्फ h की वैल्यू जो है वो डाल देंगे इक्वेशन 2 में. तो 9/25 h की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या आएगी, g by 2 n स्क्वायर. तो मैंने सिर्फ h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो g by 2 2n minus 1, ये g by 2 ये g by 2 कैंसल आउट हो गया. ओके, राइट. तो मेरे पास आया 9n स्क्वायर इक्वल टू, ये 25 वहां शिफ्ट कर दिया तो 50n माइनस 25, मतलब 9n स्क्वायर माइनस 50n माइनस 25 इक्वल टू 0. वापस से इसके फैक्टर्स आपको करने पड़ेंगे. यू विल हैव टू डू फैक्टर्स ऑफ दिस सेम जैसे मैंने पहले बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में. n इज इक्वल टू माइनस b इज माइनस 50 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब माइनस 50 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, और c की वैल्यू यहाँ पे है 25 विद अ नेगेटिव साइन. तो 25 with a negative sign upon 2 times of a. तो ये आ गया आपका n इक्वल टू 50 प्लस माइनस 50 स्क्वायर इज 2500, 25 into 4 is 100, 100 into 9 is 900 plus 900. ओके, प्लस या माइनस से उतना देखना पड़ेगा. तो ये आएगा माइनस 50 प्लस 25, तो ये आएगा प्लस 25.
तो ये जाएगा नेगेटिव यहाँ पे अपॉन 18। तो आपका यह आएगा 50 प्लस माइनस 2500 में से 900 गए 1600, 1600 का स्क्वायर होता है 40 बाय 18। तो वापस 2 मिला 50 प्लस 40 दैट इज 90 बाई 18 और 10 बाई 18। 10 बाई 18 इज अ फ्रैक्शन है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड ये फ्रैक्शन के लिए होता ही नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, सुना है क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4.5 सेकेंड। तो ये वैल्यू तो हो नहीं सकती क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। ये क्यों हो सकती है? बिकॉज इट इज 18 1 18 5। तो n की वैल्यू मिल गई आपको 5। यू हैव टू पुट दिस n इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर। आपको फाइंड क्या करना है? हाइट है ना। तो पुट n इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो पुट n इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो h इज इक्वल टू g और g की वैल्यू 9.8 बोली है। तो g बाई 2 है वहां पे, अच्छे से ध्यान दो। 9.8 बाई 2 है वहां पे, n स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 122.5। कैसे? 5 स्क्वायर 25, 25 9.2 9.8 बाई 2 इज 4.9। 4.9 को 25 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं 4.9 की जगह 5 लिखता, 5 को 25 से मल्टीप्लाई करता तो कितना मिलता? वो हमको मिलता 125। ओके, तो 125 से कम आएगा यहाँ पे, तो 122.5 क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में? हमने मान लिया कि जो ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया है उसको ग्राउंड तक पहुंचने के लिए लग गया होगा n सेकेंड्स। तो हाइट h उसने कवर किया n सेकेंड में, तो मुझे मिल गया h इक्वल टू जी बाई 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर यूज करके इक्वेशन नंबर 1। और पार्टिकल ने लास्ट सेकेंड में मतलब nth सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया? 9h बाई 25। और nth सेकेंड में डिस्टेंस कवर करने का फॉर्मूला हमारे पास है, मैंने वो लिख दिया यहाँ पे। u की जीरो डाली, सॉल्व करते गए, इक्वेशन 2 मिल गया। फिर इक्वेशन 2 में h की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट की और हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली। मतलब मुझे ये पता लग गया कि n मतलब टोटल 5 सेकेंड्स का मोशन था। ये n की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में डाल के h फाइंड कर सकते हो। इक्वेशन 1 में क्योंकि इक्वेशन 1 इज इजियर कंपेयर टू इक्वेशन 2। दोनों में किसी में भी डाल सकते हो एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h। Question number 10. A body starts from the origin and moves along the x-axis such that the velocity at any instant is given by 4t cube minus 2t, where t is in second and velocity is in meter per second. What is the acceleration of the particle when it is 2 meter from the origin? आपको पूछा है what is acceleration when it is 2 meters from the origin. So you know acceleration is derivative of velocity. So d dt of 4t cube minus 2t. Right. So a will be equal to 4 constant है. Okay. t cube का derivative 3t square आएगा. Minus 2 constant है. t का derivative with respect to t 1 आएगा. तो ये आ गया आपका 12t square minus 2 एक्सेलरेशन का इक्वेशन। हमको पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 मीटर, राइट। और एक्सेलरेशन का इक्वेशन में आ गया 12t स्क्वायर, मतलब टाइम आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो कहीं है ही नहीं। मतलब पहले हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि पार्टिकल 2 मीटर पे कितने टाइम के बाद पहुंचा। तो वो कैसे करते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव ले लो तो आपको मिलेगा वेलोसिटी। अगर उल्टा है, वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो आपको करना पड़ता है इंटीग्रेट। तो x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt, ये पता होना चाहिए, तो मैंने बताया भी है। तो x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v, बट व्हाट इज v?
4t³ माइनस 2t dt। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटीग्रेट करते टाइम आप दो टर्म्स है तो दोनों को सेपरेट कर लो और उसका इंटीग्रेशन करो। तो पहले टर्म का इंटीग्रेशन में 4 आएगा कांस्टेंट आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ t³ dt। दूसरे में आएगा 2 कांस्टेंट आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ t dt। तो x इक्वल टू 4 और आपको पता है t रेज टू 3 t रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है t रेज टू n+1 अपॉन n+1 और t के केस में भी वैसा आएगा t रेज टू 1+1 अपॉन 1+1 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। वैसे अगर ये आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं भी लिख रहे हो तो चलेगा, इस केस में चलेगा। तो फिलहाल मैं हटा देता हूँ। मैं आपको कभी बताऊंगा कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, बताऊंगा आपको, सो डोंट वरी। जब जरूरत पड़ेगी तब आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आई विल टेल यू, एट दिस मोमेंट वी डोंट नीड इट, राइट। तो x इज इक्वल टू, ये आ गया 4t रेज टू 4/4 माइनस 2t रेज टू 2/2, कैंसिल 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 कैंसिल, x इक्वल टू t रेज टू 4 माइनस t स्क्वायर, राइट, गुड। देन हमारे केस के अकॉर्डिंग हमको फाइंड करना था टाइम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 2। सो पुट x इक्वल टू 2, therefore you get 2 is equal to t raised to 4 minus t square, therefore you get t raised to 4 minus t square minus 2 equal to 0। ओके, ऐसे इक्वेशन हमने कभी सॉल्व नहीं किए, हमने क्वाड्रेटिक सॉल्व किया है, हमने टू द पावर 4 सॉल्व नहीं किया। ये क्वाड्रेटिक ही है बट क्वाड्रेटिक इन टी स्क्वायर, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ इसको टी स्क्वायर रेज टू 2 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बन गया क्वाड्रेटिक इन टी स्क्वायर। जब आप लिखते हो ना ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ तो वो क्वाड्रेटिक इन एक्स होता है। मैंने यहाँ पे लिखा टी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इन टी स्क्वायर आ गया। सिंपल है सॉल्व करना। आपको दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिसका प्रोडक्ट -2 हो, एडिशन -1 हो, वो आपको पता है -2 + 1, -2 + 1 होता है ना। आप लिख सकते हो इसको, देयरफॉर टी स्क्वायर का स्क्वायर -2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर -2, वही है इक्वेशन, तो वही है। मैंने सिर्फ क्या किया यहाँ पे है ना, एडजस्टमेंट, और कुछ नहीं किया। ये एडजस्टमेंट करने से क्या हुआ कि मुझे पहले दो टर्म में से टी स्क्वायर कॉमन निकालने का लग्जरी मिल गया। तो टी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो बचा टी स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर का स्क्वायर में से टी स्क्वायर कॉमन निकला है, दूसरे टर्म में से भी टी स्क्वायर कॉमन निकला है, और बाकी के दो टर्म में से कुछ कॉमन नहीं तो 1 निकाल लो, तो 1 कॉमन निकाल लिया, टी स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। जब कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो फिर 1 जबरदस्ती कॉमन निकालो। फिर आपको पता है कि इन दोनों टर्म में से भी टी स्क्वायर -2 कॉमन निकल सकता है, तो टी स्क्वायर -2 दोनों टर्म में से कॉमन निकाले तो पहले टर्म में क्या बचा टी स्क्वायर, और बाद में क्या बचा 1, तो +1 इक्वल टू 0, राइट, गुड। इसका मतलब मुझे मिलेगा या तो टी स्क्वायर -2 इक्वल टू 0 या फिर मुझे मिलेगा टी स्क्वायर +1 इक्वल टू 0। तो मुझे मिल गया टी स्क्वायर इक्वल टू 2 और मुझे मिल गया टी स्क्वायर इक्वल टू -1। ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं सकता? अभी कॉम्प्लेक्स नंबर आपने मैथ्स में सीखा होगा। टी स्क्वायर अगर -1 है तो टी √-1 है। √- मतलब इमेजिनरी। टाइम इमेजिनरी होता है क्या? नहीं होता। तो टाइम इमेजिनरी नहीं होता, तो हमें मिल गया टी एज √2। तो हमको ये पता लग गया कि ये पार्टिकल 2 मीटर पे कब था, जब टी की वैल्यू √2 थी। तो ये t की वैल्यू √2 डालेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट t इक्वल टू √2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो a विल बी इक्वल टू 12 t स्क्वायर तो 2 है ही, -2, 24 में से 2 गया तो मिल गया 22, 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। मैं वापस बता रहा हूँ लॉजिक ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन।
हमें वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है, हमें पता है कि वेलोसिटी के इक्वेशन का डेरिवेटिव लो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा, बट एक्सेलरेशन का इक्वेशन तो मिल गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 मीटर। तो पहले ये पता करो कि कौन से टाइम पे पार्टिकल 2 मीटर पे पहुंचा। वो कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का तो इक्वेशन हमको दिया नहीं, फिर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। इंटीग्रेट करते गए हमको मिल गया x इक्वल टू t⁴ माइनस टी स्क्वायर, मतलब ये मिल गया। अब हमने क्या किया कि हम लोगों ने x की वैल्यू 2 डाल दी, तो हमें और एक इक्वेशन मिल गया। पर ये इक्वेशन जो है दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इन नेचर। तो क्वाड्रेटिक बनाओ, कैसे बनाओ, t⁴ को टी स्क्वायर का स्क्वायर लिखो। फिर वो फैक्टराइजेशन आपने किया ही है बहुत बार स्कूल में, तो हमको मिल गया t² इक्वल टू 2। फिर ये t² इक्वल टू 2 डाल दो इक्वेशन नंबर 1 में एक्सेलरेशन के, हमको मिल गया एक्सेलरेशन का वैल्यू 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल। नेक्स्ट 11th, a particle travels 10 meter in first 5 seconds, 10 meter in next 3 seconds, assuming constant acceleration, what is the distance traveled in next 2 seconds? इजी है, इसको मैं 3 सिंपल से केस में मैं इसको रखने वाला हूँ। देखो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 मानते हो, या फिर आप बोला नहीं है ना 0 नहीं बोला है तो नहीं मान सकते, ऐसा कुछ भी नहीं मान सकते हम लोग। अज्यूम यू इक्वल नहीं, ऐसा अजम्पशन नहीं बोला होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ही 0, हमको पता नहीं यू की वैल्यू क्या है। तो क्या करेंगे फिर, अब हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि लुक एट द क्वेश्चन, पहले 5 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 2 सेकंड, पहले 5 सेकंड में 10, फिर 3 सेकंड में 10, मतलब टोटल 8 सेकंड में 20, राइट। ओके, तो केस 1 first 5 seconds distance is s1 because I will be using s equal to ut plus 1/2 at square, और कुछ तो नहीं कर सकते, वो यूज करना पड़ेगा हमको। गुड, व्हाट इज s1, so I'll write s1 equal to ut1 plus half at1 square। s1 कितना 10 मीटर, u पता नहीं, t1 कितना 5 सेकेंड तो 5u, ओके, प्लस ए भी पता नहीं, ए को ए रहने देते हैं बाई 2, t1 स्क्वायर 5 सेकेंड का स्क्वायर मतलब 25 25 आ गया, राइट, करेक्ट। तो सिंप्लीफाई करो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको क्या करो कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 5 कॉमन निकालो, सिंप्लीफाई करो। व्हाट आई कैन डू इज मल्टीप्लाई बाय 2, तो 20 इक्वल टू 10u प्लस 25a, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि मुझे फ्रैक्शन में नहीं लिखना, क्यों लिखना समझेगा आगे। अभी क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 5 कॉमन निकाल लिया, तो 5 इंटू 4 कर दिया इसको, 5 कॉमन निकाल दिया इसको, 2u, व्हाट हैपेंड, 2u प्लस 5a आ गया, ये और ये गया, तो क्या मिला मुझे, व्हाट आई हैव ऑब्टेन्ड इज 2u plus 5a where u is initial velocity, a is acceleration, equal to 4, equation number 1। केस 2 में मैं फर्स्ट 8 सेकेंड्स की बात करने वाला हूं। क्यों ऐसा करने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि पहले 5 सेकेंड में 10 मीटर कवर हुआ, अगले 3 सेकेंड में 10 मीटर कवर हुआ, लेकिन अगले 3 सेकेंड का इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है, जब हमको इनिशियल वेलोसिटी यू नहीं पता है क्या, नहीं पता, तो 5 सेकेंड का फाइनल कितना वो कैसे पता लगेगा, क्योंकि उसके लिए तो आपको v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करोगे ना u पता है ना a पता है, तो 5 सेकेंड के बाद कितना वेलोसिटी हुआ वो कैसे पता रहेगा हमको। मतलब जो नेक्स्ट 3 सेकेंड का केस है वो सॉल्व ही नहीं कर सकते ना हम लोग, कैसे करेंगे, वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन टू सॉल्व दैट। तो इसलिए हम बोलेंगे चलो इतना तो पता है, पहले 5 सेकेंड में 10 मीटर, अगले 3 सेकेंड में 10 मीटर, मतलब टोटल 8 सेकेंड में 20 मीटर। तो अगेन आई विल से s2 इक्वल टू ut2 प्लस
1/2 a t2 का स्क्वायर, s2 मतलब 10 + 10 20 मीटर, u तो पता नहीं, t2 मतलब 8 और 1/2 a 8 का स्क्वायर इज 64, मतलब ये आ गया 32। इसमें भी 4 4 4 का फैक्टर है, तो 5 2u प्लस 8, मतलब 4 4 4 कॉमन निकाल के मैंने उसका कर दिया कैंसलेशन, राइट। तो मुझे मिल गया 2u प्लस 8a इक्वल टू 5, इक्वेशन 2। इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे मिलेगा बहुत रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज इफ आई सब्ट्रैक्ट equation number 1 from equation number 2, what I will get is, मैंने इसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 2u I will just put it over here, या फिर I will have to do this, it's better। तो 2u plus 8a equal to 5, 2u plus 5a equal to 4, minus 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 3a is equal to 1, right? तो a की वैल्यू मुझे मिल गई 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये a की वैल्यू जो है, इसको मैं इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी सब्स्टिट्यूट करके मैं u की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो पुट a इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1 और 2, जो आपको पसंद आए वहां पे कर देना। 2u प्लस 5a इज 1/3 इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तो आपको u मिल जाएगा, दैट शुड टर्न आउट टू बी 5/3, 4 minus 5/3, 4 minus 5/3, 12 minus 5/3, 12 minus 5 is 7/3, 7/6 आएगा ये, 7/6 मीटर पर सेकेंड आएगा u का वैल्यू। तो हमको मिल गया u का वैल्यू। इससे क्या होगा, हमको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड, मतलब 9 और 10 सेकेंड, है ना, राइट, 9 और 10 सेकेंड। हम लोग थोड़े स्मार्ट है, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं चलो एक काम करते हैं, हम लोग बोल देते हैं कि पहले 10 सेकेंड में क्या हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे देखना है कि 9th और 10th सेकेंड में कितना डिस्टेंस हुआ। तो मैं क्या करूंगा, S3, राइट, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड। अगर आपको कंफ्यूजन होता होगा तो नोटेशन आपको जैसे पसंद है वैसे दो। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, तो मैं इसको बोल दूंगा S10, इसको बोल दूंगा S8, इसको बोल दूंगा S5। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज देन दैट इज अ गुड वे ऑफ डूइंग इट, up to you, notations up to you। S10 equal to ut plus half at square। हमको अब u पता है, u कितना 7/6, टाइम कितना 10 सेकेंड्स की बात हो रही है यहाँ पे, हाफ, a is 1/3 और 10 स्क्वायर दैट इज 100। तो इजी है ये, क्यों इजी है, बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम, 70/6 plus 100/6, so 170/6, and 170/6 you have to find out what is 170/6। 170/6 मतलब आपका ये होगा 30 से कम, बिकॉज 180/6 इज दिस। तो इफ आई डू दिस 28, 28.3, 28.3 आएगा ये आंसर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 28/3, 28.3 इंटू 6 किया तो राइट, मोर और लेस इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। तो ये आपको मिल गया टोटल 10 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस, 28.3 मीटर। हमको क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल इन द लास्ट 2 सेकेंड, मतलब 9th एंड 10th सेकेंड, क्योंकि पहले 5 सेकेंड में 10, फिर 3 सेकेंड में 10, फिर आखिरी में आपको पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट 2 सेकेंड्स, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड in oops,
traveled in next 2 seconds, मतलब 9th and 10th सेकेंड इज, कैसे फाइंड करोगे? हाँ, दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो ना, मतलब 10 सेकेंड में जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और 8 में जितना ट्रेवल हुआ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। तो ऐसा ही करेंगे ना, 8 सेकेंड में 20 मीटर डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, 10 सेकेंड में 28.3 किया, तो 9 और 10 सेकेंड में कितना टोटल डिस्टेंस इन 10 सेकेंड माइनस इन 8 सेकेंड, तो 28.3 माइनस 20 दैट इज 8.3 मीटर। है क्या ऑप्शन में? है। गुड इनफ, सिंपल क्वेश्चन, खत्म। राइट, इजी था, इजी इजी, वेरी इजी। सो आई विल स्टॉप here and we'll continue in the next session.